Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. I hope that you're doing well. Welcome to English grade 9 and a very warm welcome to the Chase Academy. Students, today we will talk about our SLO that is on punctuation. हमने एक lecture punctuation पे already कर लिया था. On page 98 we have some other punctuations जिनको आज हम इस lecture में repeat कर रहे हैं ताकि वो बिल्कुल clear हो जाए. So this is our second lecture of this unit on punctuation. Alright. Produce legible work that shows the correct spelling of the conventions of punctuation and capitalization. When you have the correct usage of punctuation and capitalization, when you're using everything correctly, जो आप चीज produce कर रहे हैं in the written form, that is legible. It is legible, it is according to the standard, it can be verified, it is grammatically correct, punctuation wise, capitalization wise, हर चीज correct होगी. But if your punctuation is all over the place, if you have forgotten to add punctuation mark of full stop at the end of every sentence, if you are writing a question and not using the question mark, it is a very big mistake. We need to realize this as soon as possible, that punctuation mistakes are not to be taken lightly. They are grave mistakes, serious mistakes, and the whole meaning of one thing can be changed. चीज का मतलब ही बदल जाता है जब आप पंक्चुएशन को सही इस्तेमाल नहीं करते. एंड यू आर लाइक, ओ आई फॉरगॉट टू पुट कॉमा. आपको बाद में याद आया, ओ देयर वुड वहां पे तो क्वेश्चन मार्क ऐड करना था या वहां पे तो फुल स्टॉप ऐड करना था. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू रीचेक वट एवर यू हैव रिटन, चाहे वो एप्लीकेशन है, लेटर है, चाहे वो कुछ भी है. इवन द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन व्हेन इट इज एंडिंग, एंड इट विद the end punctuation, which is full stop or period. Alright. So पहले lecture में हमने punctuation marks को discuss किया था. In this lecture, lecture 6, we are going to talk about the remaining punctuation marks, and this is also being repeated. So punctuation, we are very well aware that it is very important. Punctuation marks, all of them, even if it is a hyphen, वो भी important है. Apostrophe भी important है. ठीक है? तो the rules are need to be taken seriously. The Renaissance School में कितने students available हैं अभी? Hello. Am I audible to the Renaissance? You have just joined quite late. What is the reason? Okay, I think they're not hearing me. मोहम्मद आप यहाँ पे आ जाए. All right. So, one important thing is the question mark. It indicates that somebody is asking a question. It always comes at the end of a sentence. Yes, always comes at the end of the sentence. जब हम question mark use करते हैं तो हम उसके बाद full stop नहीं use करते. Excuse me, sir. क्योंकि question mark means it is हमारे साथ stopping. थोड़ा Yes. सा माइक का मसला चल रहा है, वो रिजॉल्व कर रहे हैं, फिर आपसे बात करते हैं. क्या आपको मेरी तरफ से आवाज क्लियर है? सर हमारी तरफ से. आपको मेरी तरफ से आवाज क्लियर है? सर आपकी आवाज हमारे तक नहीं आ रही. Please check your system. All right. Are we at the end? मोहम्मद, क्या यहां पे फुल स्टॉप ऐड कर सकता हूं? नो. क्या यहां पे अगर मैं क्वेश्चन मार्क ऐड ना करूं तो क्या ये ठीक है? क्यों? यस, इंडिकेशन जरूरी है. आप कहें नहीं, आर वी एट द एंड, आर यूज किया है ना, तो इसका मतलब है क्वेश्चन है. डिड यूज किया है, हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, हाउ, इसका मतलब है क्वेश्चन किया है. बिकॉज आई एम यूजिंग दीज इंट्रोगेटिव वर्ड्स एट द स्टार्ट. तो पंक्चुएशन मार्क लगाना क्यों जरूरी है? हम तो बोलते हुए भी पंक्चुएशन मार्क नहीं लगाते. क्या मैं आपको कहता हूं कि मोहम्मद हाउ आर यू, क्वेश्चन मार्क, व्हाट आर यू डूइंग, क्वेश्चन मार्क. When we are speaking, हमारे अंदाज से पता चलता है that it is a question. अगर मैं कहूं what are you doing,
दिस इज रॉन्ग, डजंट साउंड लाइक अ क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरह नहीं लग रहा। अगर मैं कहूं व्हाट आर यू डूइंग और हाउ आर यू ऑल, तो वो जो उसके अंदर इंटोनेशन है, स्ट्रेस है, राइजिंग एंड फॉलिंग, वो बताएगा कि दिस इज अ क्वेश्चन। बट लिखने में हमें, क्योंकि हम बोल तो नहीं रहे, हम तो लिख रहे हैं, उसमें हमें पंक्चुएशन मार्क्स को ऐड करना लाजमी है। आर वी एट द एंड? और did you reach at the end? Did, do, are, had, have, does, ये सारे क्वेश्चन वाले वर्ड्स हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, जो कि हम स्टार्ट पे यूज करते हैं। Alright. A question mark also serves as a full stop. When you have a question mark, you don't need to add full stop because the question mark is doing the work of full stop. Now, I would take some examples, 3 examples each from Aman, Nabiha, and Sadaf. Give me an interrogative sentence quickly. And Dharanasa, if you have trouble with your microphone, आप type कर सकते हैं. Why are you so late? Why are you so late? Starting with why, it is a question, ends with a question mark. Very good. Yes, what about Aman? Think of a question. What are you doing? Shabash, that's good. Which color do you like? Which color do you like or which color do you prefer? That is also a question. So, all right. So we are clear about questions. What are you doing? लेकिन अगर मैं कहूं मैंने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, उस टाइम I asked them what they were doing. Do we need to add a full question mark? Why? What they were doing. Question mark आ सकता है कि नहीं? Think about it. मैंने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे थे. No question mark. क्योंकि हम नरेट कर रहे हैं. We are quoting indirectly and we are narrating something कि मैंने फलां से पूछा था. मैं आपसे तो नहीं पूछ रहा, मैं तो बता रहा हूं कि मैंने उनसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं. ठीक है, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं ऐड करेंगे. अच्छा, व्हाट आर यू डूइंग? कौन मुझे बताएगा व्हाट आर दीज वर्ड्स, व्हाट के अलावा, वाई के अलावा? वाई, व्हाट, व्हेन, वेयर, How? हाउ, हु, whom भी आ सकता है. और Hmm. 5 W's हो गए. 5 W's कैसे होंगे? when, where, why, what. और एक H, how. तो ये जो H है ये भी 5 में कंसिडर किया जाता है. These are called 5 W's of questions. All right. Now, another thing is rhetorical questions, जो हमने एक दफा oral communication क्लास में हमने पढ़ा था. जो rhetorical questions हैं एक्सप्रेशन के लिए कि क्या खूबसूरत दिन है, यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि एक्सप्रेशन है. व्हाट अ ब्यूटीफुल डे. आई एम नॉट सेइंग व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, आप बताएं क्या खूबसूरत दिन है. आई एम सेइंग व्हाट अ ब्यूटीफुल एंड व्हाट अ लवली डे. ऑलराइट. या अगर मैं कहूं एक्सप्रेशन से ये तुम क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग, इसके एंड में भी एक्सक्लेमेशन, क्योंकि ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है सवाल, क्या है, क्वेश्चन है, लेकिन एक्सप्रेशन वाला है, एक्सक्लेमेटरी है, तो यहां पे इंट्रोगेटिव में नहीं आएगा. लेकिन जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं जैसे इट इज नाइस, इजंट इट, कितना अच्छा है ना, इजंट इट. तो यहां पे भी यू एड क्वेश्चन टैग्स. ये जो क्वेश्चन टैग्स होते हैं, यू आर हैप्पी, आर यू नॉट, ही इज लकी, इज ही नॉट. तो यहां पे ये जो क्वेश्चन टैग्स हैं यहां पे भी एंड में क्वेश्चन मार्क हम ऐड करेंगे. ऑलराइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेमीकोलन. सेमीकोलन, it's not a complete colon. Complete colon looks like this: two full stops vertically
this is colon. But when we have one full stop and one comma, this is semi. Semi means half. This is semicolon. That's why we call it semicolon. This is perhaps the most difficult sign of punctuation to use accurately. जिस punctuation mark पे आपको सबसे ज्यादा काम करने की जरूरत है, that is your semicolon, because it is a little bit difficult, not impossible to understand obviously, but a little bit it needs your attention. All right. For example, my car broke down this morning. It's being fixed at the mechanic's garage now. यहां पे करेक्टली हमने सेमीकोलन को यूज किया. My car broke down this morning. इंडिपेंडेंट सेंटेंस है बिल्कुल. मेरी जो गाड़ी है वो आज सुबह खराब हो गई. समझ आ रहा है आपको? बिल्कुल. My car broke down this morning. दूसरा पार्ट, it's being fixed at the mechanic's garage now. It is being fixed. ये मैकेनिक के गराज में, मैकेनिक इसको गराज में रिपेयर कर रहा है. इसकी भी हमें समझ आ रही है. तो इन ऑर्डर टू कनेक्ट दीज टू वी यूज सेमीकोलन. नाउ क्या हम यहां पे कॉमा यूज कर सकते थे? दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. माई कार ब्रोक डाउन दिस मॉर्निंग, कॉमा, it's being fixed at the mechanic's garage now. It is better to use semicolon because the sentences are independent. Now, semicolon को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? Stronger than a comma. कॉमा में आप शॉर्ट पॉज लेते हैं, चीजों को सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं, राइट? इट इज स्ट्रॉन्गर देन कॉमा. कॉमा से थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, वीकर देन अ फुल स्टॉप. फुल स्टॉप तो हर चीज को खत्म कर देता है ना, लेकिन ये फुल स्टॉप से थोड़ा कम और कॉमा से थोड़ा ज्यादा, यानी फुल स्टॉप और कॉमा के दरमियान की इसकी स्ट्रेंथ है और इसका यूजेज है. और कॉमा और फुल स्टॉप के जगह पे आप सेमीकोलन को इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी पंक्चुएशन की जगह आप सेमीकोलन को यूज नहीं करेंगे. लेट्स लुक एट सम एग्जांपल्स. When we are joining two connected sentences, दो sentences जब connected हैं आपस में, उनको connect करने के लिए, join करने के लिए, we set out at dawn, the weather looked promising. दोनों independent हैं. We set out at dawn. हम dawn पे सुबह, जब सुबह होती है, that is the time of dawn or dusk? Yes. Dawn? Dusk? What do you think? The weather looked promising. सुबह सुबह the weather looked promising. अब इसका भी हमें, we are understanding it. We are understanding this as well. So this is a separate sentence and this is a separate sentence, but they are connected. Logically they are connected. We used semicolon over here. Now, when we are assembling a list, अच्छा, जब हम लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाएंगे, देन वी विल यूज सेमीकोलन. एक तो हम नॉर्मली लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं, एप्पल्स, ऑरेंजेस, बनानास, टमेटोज, कॉमा 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 कॉमा, राइट? लेकिन हम यहां पे एक डिफरेंट चीज इंट्रोड्यूस कराएंगे और उसकी एक कैटेगरी बताएंगे और उसके बाद कॉमा एंड देन अनदर थिंग एंड देन कॉमा. लुक, पेरिस फ्रांस, ये एक चीज है, कॉमा के जरिए सेपरेट किया. वन इज अ सिटी, पेरिस इज अ सिटी ऑफ फ्रांस, दैट्स व्हाई वी सेपरेटेड. जैसे हम लाहौर, कॉमा, पाकिस्तान. बट वी हैव टू मेंशन मोर कंट्रीज एंड देयर सिटीज. सो क्या करेंगे? सेमीकोलन वी विल यूज, बिकॉज सेमीकोलन इज स्ट्रॉन्गर देन कॉमा. यूएस, टेक्सास, यूएस. अच्छा, now we are introducing another country with the city. London, UK. City comes first, country comes later. Stockholm, Sweden. फिर हमने semicolon को use किया. Colombo, Sri Lanka. Then we used Mumbai, India. And then that's it. And जब हमने and लगा लिया, we added and. There is no need to use semicolon anymore. So देखें, when you are introducing list that already has a comma in it,
उसके अंदर ऑलरेडी कॉमा है, अगर हम यहां पे भी कॉमा लगाएंगे इट विल बी कंफ्यूजिंग, so that's why we used semicolon. This semicolon se help li and then we used it to separate all these items. So connected sentences, joining the sentences together, using a list, दो इस्तेमाल हो गए, right? Look at this. Hania loves football. It's her favorite sport. यहां पे भी हम वही बात कर रहे हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. In this sentence, one of the clauses, it's her favorite sport, wouldn't make full sense. अगर मैं कहूं it's her favorite sport, कौन सी sport, किसकी, हमें बिल्कुल भी पता नहीं है किसके बारे में हम कह रहे हैं कि it's his favorite sport. We have no idea. This is dependent. तो dependent clause को जब independent, क्या ये इंडिपेंडेंट है? हानिया लव्स फुटबॉल. हानिया लव्स फुटबॉल, इज इट इंडिपेंडेंट? कैसे? इंडिपेंडेंट है. डिपेंडेंट में बात खत्म नहीं होती, इंडिपेंडेंट में बात खत्म होती है. सदफ, ठीक है. हानिया लव्स फुटबॉल, इट्स हर फेवरेट स्पोर्ट. इट्स हर फेवरेट स्पोर्ट डिपेंडेंट है हानिया लव्स फुटबॉल पे, राइट? तो डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज को जब हम कनेक्ट करेंगे वी विल यूज semicolon over here. All right. So we are linking the two clauses together with a semicolon. All right. So connected sentences together, list और subordinating और main clause को connect करने के लिए we used semicolon. Easy. Colon. Colon अक्सर आप यूज करते हैं ना, आंसर लिखते हैं ANS, कॉलन यूज करते हैं, और आप ए लिखते हैं ऐसे और फिर कॉलन यूज करते हैं. ए लिखते हैं या हेडिंग लिखते हैं जैसे कि पोल्यूशन, और फिर आप हेडिंग के साथ कॉलन को इस्तेमाल करते हैं ना आगे डिटेल लिखने के लिए. और क्या यूज करते हैं आप? और यूज बताएं जी. जब हम लिस्ट देते हैं, आइटम्स को इंट्रोड्यूस करवाने लगे विद सेपरेटिंग विद कॉमास. जो पिछले में हमने देखा, जैसे आपने कहा था उसकी सिटी है, उसमें तो हम ऐसे लगा सकते हैं. यस यस यस, वो सेमीकोलन की जगह. बिल्कुल नहीं, उसमें आप कॉलन को ही इस्तेमाल करेंगे, दैट वुड बी बेटर. ऑलराइट. वाटर बॉटल्स, फ्रूट्स. अब देखें उसमें कंट्रीज की बात हो रही थी, यहां पे डिफरेंट चीजें हैं. वाटर बॉटल एक अलग चीज है, फ्रूट इट्स अ डिफरेंट कैटेगरी. वहां पे सिर्फ कंट्रीज एंड सिटीज की बात हो रही थी, यहां पे फ्रूट, बॉटल, वेजिटेबल, टॉयलेट रोल्स ये एक और चीज, मुख्तलिफ कैटेगरी. सीरियल्स मुख्तलिफ कैटेगरी, कार्टन्स ऑफ मिल्क मुख्तलिफ कैटेगरी. ठीक है, तो इसलिए हमने इन सारी लिस्ट को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए वी यूज्ड कॉलन. और ये भी इस्तेमाल करते हैं हम और टाइमिंग के लिए भी. यस करते हैं ना, यहां पे 7 PM, 11 PM, मोहम्मद 10 AM. तो और अगर 7:30 होंगे तो क्या करेंगे? कॉलन 7:30. अगर फुल, if it is 7 o'clock completely, then this is 7 or 7:30. All right. Now the colon within a sentence makes a very pointed pause between two phrases. There are two main uses of the colon. First one is when we are listing. She placed the following items in the trolley. What are these following items? Muhammad, read them. नजर आ रहा है आपको? कौन पढ़ेगा? अमन, शाबाश, बी एक्टिव. Water bottles, fruits, vegetable, toilet roll, cereals, and carton of milk. Okay, very good. Or it can be used within a heading or a descriptive title. Heading के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. Human resource management, guidelines for telephone advisors. ये मेन हेडिंग है, ये उसकी सब हेडिंग है. तो क्या किया? कॉलन का इस्तेमाल किया. ऑलराइट. सो दिस इज कितनी हमारे पास टाइप्स हो गई? टाइम, उसके अलावा लिस्ट, उसके अलावा ये आंसर और ये हेडिंग्स वगैरह, और देन द
सब हेडिंग, मेन हेडिंग, टाइटल्स, सब टाइटल्स, ऑल दोज थिंग्स, सबके लिए कॉलन को इस्तेमाल करेंगे जी। एनी क्वेश्चन फ्रॉम जूम क्लास? यस, द रेनेसां। Alright, I think there's problem with the mic. Apostrophe, क्या कहेंगे इसे सदफ? Apostrophe, apostrophe. It is a kind of a comma, but ये लाइन से काफी ऊपर इस्तेमाल होता है कॉन्ट्रैक्शंस के लिए और पोजेशन के लिए। किसके लिए? कॉन्ट्रैक्शंस यानी शॉर्ट फॉर्म्स के लिए और पोजेशन के लिए। मोहम्मद बाइसिकल, मोहम्मद टी शर्ट, मोहम्मद की टी शर्ट, मोहम्मद का मोटर बाइक, राइट जी। क्वेश्चन फ्रॉम द रेनेसां, दे हैव रेज्ड देयर हैंड्स। आप टाइप कर दें अगर आपके एंड से माइक का इशू है। The apostrophe, sometimes called an inverted comma, has two main uses. इसे inverted comma भी कहते हैं, but better you call it apostrophe. Yes, it's a comma like this, or you can use this or this indication. ठीक है? The apostrophe indicates possession or ownership. कोई चीज किसी possess कर रहा है। कौन एग्जाम्पल देगा? Quickly. The girl's hat was green. क्योंकि यहां पे गर्ल सिंगल है। अच्छा, गर्ल्स हैट। यस, हु इज गोइंग टू टेल मी? अगर मुझे प्लूरल के साथ अपोस्ट्रोफी यूज करनी है कैसे करूंगा? अपोस्ट्रोफी एल के बाद आएगी, वो तो सिंगुलर के लिए है। लड़की की हैट, मैं कह रहा हूं लड़कियों की हैट्स, एस के बाद अपोस्ट्रोफी यूज होगी। प्लूरल है ना? इफ आई से दिस, इफ आई राइट दिस, girls hat, क्या ये ठीक है? No, this is not right. We need not any other kind of s. हमें s और नहीं चाहिए। प्लूरल के साथ हम एंड पे अपोस्ट्रोफी लगाएंगे और बस, एक्स्ट्रा ऐड नहीं करेंगे। कोई और एग्जांपल देना चाहते हैं आप? यस, वहां पे भी आता है आपका। वो तो अब किसके लिए? पोजेशन, ओनरशिप। आपका ओबीडियंट, आपका फर्माबरदार। ठीक है? ऑलराइट, दिस शोज द रीडर दैट द हैट बिलोंग्स टू द गर्ल। द गर्ल्स हैट वर ग्रीन। यहां पे हम गर्ल्स प्लूरल में बात कर रहे हैं। ऑलराइट, जब हम सिंगुलर में बात करेंगे तो एल या जो भी आखिर वाला लफ्ज होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी के साथ एस लगाएंगे, लेकिन अगर हम प्लूरल की बात कर रहे हैं तो हम एस नहीं लगाएंगे। ऑलराइट, now another use of the apostrophe is to indicate where a letter is omitted. For example, we are going to this course, we are going to do this course, we are going to do this course. Isn't this a fine example of punctuation? ये देखें, where is the apostrophe? Isn't it? Is not it? Is it not? की contraction क्या है? Isn't. Contraction के लिए इस्तेमाल किया। टाइम, जैसे हमने कॉलन को इस्तेमाल किया था फॉर टाइम, अगेन यहां पे 7 ऑफ क्लॉक। 7 ऑफ क्लॉक की शॉर्ट क्या है? 7 ओ क्लॉक, और ओ के बाद पंक्चुएशन, ओ के बाद apostrophe. Now, here are some activities for colon and semicolons. 3 kinds of poems are narratives, lyrics and drama. Yes, ये हम पहले भी कर चुके हैं एक्टिविटी। 3 kinds of poems are, कौन सी poems हैं? Narrative, rhythmic and dramatic poems. तो we left around 10. Colon, it began raining about 10 o'clock. Consequently, the picnic was postponed until the next day.
Yes. It began raining about 10 o'clock. Yes. Colon or semicolon or nothing. If it's nothing, then you can just leave it. It began raining about 10 o'clock. The picnic was postponed until the next day. Okay, we can use a semicolon. You may wait here if you wish, otherwise, you can come back tomorrow. Yes, we can add it. Everyone was confused. No one knew what to do. Again, we can use our. Yes, everyone confused. No one knew what to do. Do we need to add something? Maybe not. All right. Semicolons की worksheet है जिसमें you will be tested for using understanding semicolons. There's a skill sheet as well related to these punctuation marks जो हमने अभी पढ़े और पिछले punctuation marks की भी इसके अंदर आपको hint मिलेगी आप वो भी questions solve कर सकते हैं. So this is all about this lecture. Now any question from the Renaissance, from the Zoom class or students over there, over here. Clear? Now you are supposed to submit the previous worksheets. I hope and I suppose that you have done it already and this one too. Take care of yourselves and Allah Hafiz.